Hello students, in this video, that is video number 2nd, the chapter is 1, the living world. I am trying to explain by my own way, that is 1.3 taxonomic categories. बेटा ये जो कंसेप्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का और इसको किस तरह से मेमोराइज करने का स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, समझना। इसके अंदर एक मेजॉरिटी आपको एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे टैक्सॉन। व्हाट इज टैक्सॉन? टैक्सॉन क्या है? तो टैक्सॉन इज सेड टू बी द दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और यहाँ पे एक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ grouping of organisms into smaller and larger groups and in which the taxon is said to be the category. अब इससे आगे हम पढ़ने वाले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर जो भी हम पढ़ेंगे ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है, फैमिली भी एक टैक्सॉन है। In taxonomy, basically two biological branches play significant role, and among the two biological branches, one is said to be the morphology and one is said to be the physiology. And various other branches are there, but among them morphology plays significant role. Morphology stands for how eye looks and physiology how eye walks. अगर हम एक्टिवा का एक एग्जाम्पल लें तो एक्टिवा में एक सीट होता है, कवर होता है, हैंडल होता है, एक्सीलरेटर होता है, वगैरह वगैरह। जब वो हम बातचीत करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मोर्फोलॉजी। अब अगर वही एक्टिवा में अगर हम की होल के अंदर की अप्लाई करें और उसको अगर किस तरह से फंक्शन आता है, इग्निशन जाता है, अपन स्टार्ट लेते हैं, फंक्शनिंग की बातचीत करें तो वो होगा फिजियोलॉजी। मोर्फोलॉजी इट सेज टू बी हाउ आई लुक्स, दैट इज हाउ इट या आई लुक्स, एंड फिजियोलॉजी सेड टू बी द हाउ आई वर्क्स. So how I looks and how I walks, these are the various two terms that you have to remember. A part of that, the species definition you have to keep in your mind. What is species? The species, just like as an sample bole, the species is said to be the taxonomical studies. Consider a group of individual organisms with fundamental similarities. It is said to be the taxonomy. That is taxonomy. A taxon, that is species. अपन species की definition बोलेंगे। स्पीसीज का एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो स्पीसीज एग्जाम्पल मेंजीफेरा इंडिका। इसमें इंडिका स्पीसीज है, सोलेनम ट्यूबरोजम, ट्यूबरोजम स्पीसीज नेम है। सेम वे जीनस, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज jointly constitute the genus. Among them, Panthera is a generic name, Solenum is a generic name. Next comes families. What is families? A group of closely related genera jointly constitute families. Example of family, Felidae includes the dogs and cats. Solanaceae, Solenum nigrum, Solenum tuberosum, these are said to be the examples. अब बेटा ये जो कंसेप्ट है उसमें आपको याद क्या रखने का है, तो स्पीसीज का डेफिनेशन याद रखने का। आगे जितने कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे उन सब की आप डेफिनेशन जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इफ वी मूव फर्दर, so 1.3.4 order, 1.3.5 class, 1.3.6 phylum, 1.3.7 kingdom. They are easily understandable. That is on page number 10. You have to follow the previous explanation from my side. A part of that on page number 10, a term is printed in a chart form, that is kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Here, starting from species, you have to remember, according to NCERT book, species is said to be the smallest unit of classification. Many species having similar characteristics jointly constitute genus. Many genera having common characteristics and origin jointly constitute family. Many families having little bit nearest characteristics or same characteristics jointly constitute order. Jointly, many orders jointly constitute class. अब क्लास की अगर हम बातचीत करें तो आगे जाके हमको यहाँ पे क्लास 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो प्लेंट्स के अंदर हम एंजियोस्पर्म में बात करें तो क्लास डाइकॉट और क्लास मोनोकॉट की हम बातचीत करने वाले। एक एग्जाम्पल हमको समझने का है।
क्लास जॉइंटली कंसिडर्ड फाइलम और डिवीजन, डिवीजन किंगडम। अब इसके बीच में कई कई जगह पे आपको सब किंगडम कैटेगरी भी आएगा। किंगडम टॉप मोस्ट कैटेगरी, जिससे हम बात करें तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, किंगडम इज टू द टॉप मोस्ट कैटेगरी। अब इसके अंदर बेटा यहाँ पे नीचे मैं रेड कलर के बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा लिटरेचर है रिगार्डिंग नीट। स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज, कोहॉर्ट और वेराइटी भी आता है। वेराइटी, व्हाट इज वेराइटी? वेराइटी क्या होता है? व्हाट इज वेराइटी? अगर मैं सिंपलेस्ट वे से समझाने का बातचीत करूँ तो लगभग इंडिया में और जिस जोन में हम रह रहे हैं गुजरात में, लगभग बेटा मार्च अप्रैल के अंदर एक सीज़न आता है। कौन सी सीज़न आता है मार्च अप्रैल में? तो आप बोलोगे सर होली आती है। बेटा होली तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक सीज़न आता है कि जिसके अंदर हम घर के अंदर गेहूँ लाते हैं, गेहूँ भरते हैं। आपको इस बार मम्मी पापा के साथ जाने का या वॉटेवर, लेकिन साथ में जाके पूछने का तो कौन से गेहूँ लाए, तो आप बोलो भालिया गेहूँ है, टुकड़ी है, 407 है, लोको है। तो वहाँ पे जो बातचीत होता है वो वैरायटी की बातचीत होता है। वैरायटी कौन सी है? तो जब आप आगे जाओगे तो एक कंसेप्ट भी आपको देखने का है। मतलब इन शॉर्ट, स्पीसीज के नीचे भी आता है जो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, वो सब स्पीसीज, कोहॉर्ट और वैरायटी। ये मैं डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाने का ट्राई किया। बेटा पेज नंबर 11 के ऊपर एक पूरा टेबल है और टेबल के ऊपर मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट वो पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है। टेबल आपको प्रॉपरली समझने का है क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह कंसिडर किए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर खाली मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे बुक के अंदर फैमिली नेम पोएसी लिखा हुआ है, उसको आपको पोएसी को सिनोनिम ग्रामीनी कंसीडर करने का। तो ग्रामीनी ओल्ड नेम्स था, न्यू नेम पोएसी है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली नेम के अंदर CEAE सफिक्स होने का एक रूल बनाया था। तो मैक्सिमम जितने भी ओल्ड और न्यू मतलब नए नए मेथड्स आते गए उसके अंदर करेक्शंस है। पोएसी दैट इज ओल्ड नेम वाज ग्रामीनी, तो हमको आप लोगों को दोनों कंसीडर करने के रहेंगे। As the discussion is going on further, the discussion start 1.4 that is taxonomical aids। मस्त है। वैसे मैं बोलूँ तो ये चैनल का मैंने नाम भी दिया हुआ है बायो बैटल ऑफ वर्ड्स। फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करता हूँ अपने क्लास के अंदर जब बच्चे नए आते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं ये फ्रीक्वेंटली कम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स आया। व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स? जब भी हम देखते हैं वही बात, बाय बैटल ऑफ वर्ड्स, एड्स। अगर मैं ओनली वर्ड यूज़ करूँ बेटा एड्स, तो एड्स इज अ डिजीज जो अपन 12th में इम्यूनिटी के अंदर पढ़ने वाले। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स मतलब कौन से यूजेस, टूल्स होते हैं जिससे हम स्टडी कर सकते हैं टेक्सोनॉमी। इफ यू वांट टू डिस्कस द टेक्सोनॉमिकल एड्स, so it is said to be that the knowledge is very much important in the field of agriculture, forestry and various other disciplines. A part of that, a prime source of taxonomical study is collection of actual specimen. Actual specimen. Actual specimen is said to be the prime source of the study. मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हिमालय में येती है। अब हिमालय में येती है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसका एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्ट करना टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हमको एक्चुअल स्पेसिमेन अवेलेबल है तभी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे ले सकते हैं। यहाँ पे 1.4.1 एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। अब यहाँ पे हर्बेरियम एंड हर्बेरिया दोनों वर्ड वापस डिफाइन द टर्म करके भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बेरियम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बेरिया? बेसिकली दिस वर्ड्स आर यूज फॉर द प्लांट्स। दीज वर्ड्स आर यूज फॉर द प्लांट्स। प्रैक्टिकल्स के अंदर इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरह से बनाया जाता है। एक सीधा एक एग्जाम्पल दूँ, मान ले आप कभी मेडिकल स्टोर में जाते हो, मेडिकल स्टोर में, और आपको कोई ड्रग लेना है, आपने अपना जो पर्ची है, चिट्ठा है, वो आपने मेडिकल जो स्टोर कीपर है उनको दिया, और वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाता है और वहाँ जाके आके आपको चिट्ठी देता है कि भाई ये ड्रग मेरे पास नहीं है। ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। मतलब हम ये सोचते हैं कई बार कि ये
केमिस्ट्री, जो केमिस्ट की दुकान है उसके अंदर इतनी सारी दवाइयाँ, वो बंदे को इतनी सारी दवाइयाँ याद कैसे रहती है? हकीकत में याद रखने की एक मेथड है। उन्होंने अपनी पूरी शॉप को ड्रग के नेम से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। जो भी आपका ड्रग नेम आता है वो या तो वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है तो सीधे बोल देंगे, ला के दे देंगे। लेकिन अगर वो कभी कभी कोई डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो उस जगह पे जाएंगे और फिर वहाँ से देख के बाद आके आपको बोलेंगे कि ये अवेलेबल नहीं, ऐसी बातचीत होता है। अब दूसरा एक एग्जांपल दूं, जैसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बड़ी लाइब्रेरी होती है, हजारों लाखों किताबें होती हैं। आप स्पेसिफिक बुक लेने के लिए लाइब्रेरियन से कांटेक्ट करो। वो लाइब्रेरियन आपको अगर पूरी लाइब्रेरी प्रॉपर अरेंज करी हुई है तो कंडीशन अप्लाई, तब वो स्पेसिफिक आपको कबोर्ड नंबर, शेल्फ नंबर के साथ बोल देंगे कि ये बुक इस जगह पे पड़ी है, जाके ले लो। तो वहाँ पे पूरी जो लाइब्रेरी है उन्होंने वर्चुअली या तो ऑथर नेम या बुक नेम से बाइफर्केट करी हुई है और उसके अकॉर्डिंग टू वो डेटा बनाते। मतलब जिस तरह से लाइब्रेरी के लिए हम बोलते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ बुक्स, ओके, केमिस्ट शॉप इट इज सेड टू बी द कलेक्शन एग्रीगेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। उसी तरह से यहाँ पे हमको एक वर्ड पढ़ने का है, हॉर्बेरिया। तो हॉर्बेरिया हमारे बुक के अंदर एक फोटो भी दिया हुआ है बैक साइड में, पेज नंबर 12 के ऊपर। हॉर्बेरिया इज अ place where herbarium sheets are arranged following a proper scientific name। इंडिया के अंदर हम बेंथम एंड हुक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। और हर्बेरियम शीट क्या है? तो हर्बेरियम शीट बनाने के लिए पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसमें पॉइजनिंग करते हैं और पॉइजनिंग करने के बाद हम एक प्रॉपर साइज का शीट लेते हैं। शीट एक शीट होता है, ओके, और वो शीट के ऊपर हम वो प्लांट्स है ना जो ड्राइड हमारा प्लांट्स है, पॉइजन करने के बाद उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। राइट हैंड साइड लोअर साइड एक लेबल होता है जिसके अंदर रिलेटिव इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होता है। और ये पूरी के पूरी हर्बेरियम शीट जिस तरह से हम मैंने समझाने का ट्राई किया वो अरेंज होता है, वो जगह को हम बोलते हैं हॉर्बेरिया। तो हॉर्बेरियम इज अ शीट, सिंगल स्पेसिमेन, ड्राइड, प्रिजर्व, पॉइजन, mounted, label is done, and herbaria is a place where it is stored. Herbaria is said to be the integral part of the botanical gardens that step by step I am trying to explain. Botanical garden is said to be the such a place where artificially we are collecting the plant species, rare species, and they are maintained in their natural habitats, that is known as botanical garden. Frequently I have raised a question and I have discussed too with various students also. जब भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा होता हूँ, समझाता होता हूँ, बातचीत कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा एक क्वेश्चंस पूछता हूँ बच्चों को कि बेटा अगर आपको बॉटनी टेक्सोनॉमिकल स्टडी पढ़ना है तो कौन सा अच्छा रहेगा? हर्बेरियम शीट स्टडी करना या हर्बेरिया की विजिट करना अच्छा रहेगा या बॉटनिकल गार्डन की विजिट करना अच्छा रहेगा? जनरली हर बार हर साल बच्चों का आंसर एक ही कॉमन रहता है कि सर बॉटनिकल गार्डन अच्छा। मैं बोलता हूँ बेटा बॉटनिकल गार्डन अच्छा नहीं है, या यूँ बोलूँ तो दोनों की ज़रूरत है। दोनों की कैसे ज़रूरत है समझाऊँ तो अगर मान ले आपको दिसंबर महीने में मैंगो का फ्लावरिंग देखना और आप बोलो चलो सर बॉटनिकल गार्डन में चलो मैंगो का फ्लावरिंग दिखाओ, तो मैं बोलूँगा बेटा पॉसिबल नहीं। ओके, हॉट समर में बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो ट्री सारे के सारे डेसिडियस कंडीशन में होगा, तो जो पतझड़ से पत्ते झड़ जाएंगे। मतलब बॉटनिकल गार्डन लिविंग प्लांट स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व्ड है, लेकिन उसका एक एडवांटेज है, दोनों का एक एडवांटेज है, दोनों का एक डिसएडवांटेज है। बॉटनिकल गार्डन का एडवांटेज क्या? क्योंकि वहाँ पे हम लिविंग स्पीसीज प्रिजर्व कर रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसमें से सीड कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको बचाने का ट्राई कर रहे हैं और नेचुरल अपीयरेंस, नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करता है। लेकिन साथ में हमको फ्लावरिंग सीजन की फिर वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर्बेरियम या हर्बेरिया देखना चाहते हो, हर्बेरियम शीट देखना चाहते हो हर्बेरिया के अंदर जाके, तो 360 डेज 24/7 आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हो। आपको परमिशन लेना पड़े, आप वहाँ पे कभी भी जाके देख सकते हो। वहाँ पे ड्राइड स्पेसिमेन है तो वो
अवेलेबल रहेगा, ड्राइड स्पेसिमेन डिसअपियर नहीं हो जाएगा, इट विल रिमेन फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर। जैसे अगर यहाँ पे एक मेरे बोलने की इच्छा हो गई, समझना, रिवर कैन क्राई, रिवर कैन ड्राई, रोज कैन क्राई, बट वर्ड्स कैन रिमेन फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर। जैसे ये सब यूट्यूब चैनल के अंदर जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ या जो भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो बन गया एक बार, तो इट इज़ रिमेन फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर, ऐसी कुछ बातचीत है। तो एक बार अगर साइंटिफिकली हर्बेरियम शीट बन गया है और उसको रख दिया स्पेसिमेन प्रॉपर पॉइजन बना के, तो बंदा मर जाएगा, लेकिन वो हर्बेरियम शीट एज इट इज़ पड़ी रहती है। जो हमारी बुक के अंदर कुछ चीज़ें कुछ कम लिखा हुआ है, इसे डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट आगे जाके टेक्सोनॉमिकल फील्ड में आगे अपना करियर बनाएगा, तो वहाँ पे और मेथड्स भी आते हैं कि जिसके अंदर फ्यूमिगेशन एक कंसेप्ट आता है, फिर फंगीसाइड्स का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मतलब एक बार हर्बेरियम शीट बन गया तो वो हज़ारों साल तक हम एज इट इज़ रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और कई ऐसे प्लांट्स हैं कि जो डिसअपियर हो गए अर्थ के ऊपर, लेकिन उनके बावजूद भी उनकी हर्बेरियम शीट्स आज की डेट में प्रिजर्व फॉर्मेट में अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। इसके आगे हम एनिमल्स की बातचीत शुरू कर रहे हैं। Here 1.4.3 we are starting our discussion, that is with museum, a branch of biology in which the museums constructed are known as museology। पूरा एक ब्रांच है म्यूजियोलॉजी। म्यूजियम अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर आर्कियोलॉजी से रिलेटेड लिटरेचर रखा जाता है, स्टेटमेंट्स रखे हुए होते हैं, वगैरह 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 बातचीत होता है। अब यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं जूलॉजिकल म्यूजियम। अब जो जूलॉजिकल म्यूजियम होते हैं उसके अंदर हम एनिमल्स से रिलेटेड रखते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर प्लांट्स उगाए जाते हैं जैसे नेचुरल ब्यूटी आए। और यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट एक हम बात कर सकते हैं म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स। जैसे म्यूजियम हम बोले तो कंपेयर करें प्लांट्स के साथ, तो इससे पहले जस्ट एक मिनट पहले हमने बातचीत किया जिसमें म्यूजियम दैट इज यू कैन कंपेयर विद द हर्बेरिया, एंड जूलॉजिकल पार्क जिसको हम जूस बोलते हैं, जू। तो जूलॉजिकल पार्क दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज एन प्लांट, दैट इज बॉटनिकल गार्डन। तो जिस तरह से म्यूजियम के अंदर बड़े साइज के एनिमल्स, छोटे साइज के एनिमल्स प्रिजर्व कंडीशन में रखे जाते हैं, तो म्यूजियम इज सेड टू बी द सच अ प्लेस वेयर, इफ वी एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, वेयर लार्ज साइज एनिमल्स internal organs are removed and they are preserved such a way that that natural appearance will remain as it is, and these are said to be the museums. In zoological parks, the animals are kept in captivity conditions that they can remain alive and visitors can visit and study regarding the animals. So museum and zoological parks, you can understand this way. These all literature are printed on page number 13. See, this is my nature that in my videos always what I am talking about that I will try to explain with the page number 2. ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई बार बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, हार्टली थैंक यू फॉर दैट। आई विल डू माई वर्क, वट एवर आई एम डूइंग दैट आई विल कंटिन्यू माई वर्क। अब समझना, यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने का, कई बार ऐसा होता है सामने वाला बंदा जो वीडियो देखता है, मैं भी कई अलग अलग पर्सन्स के वीडियोस देख रहा हूँ, मैं भी अपडेटेड हो रहा हूँ, तो उसमें पता ही नहीं पड़ रहा कि जो स्पीकर है या जो बात कर रहे हैं वो किस जगह से बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल वीडियो बनाना अलग चीज़ होता है। ओके, जब अपन एजुकेशनल वीडियोस बना रहे होते हैं तो मेरा पर्सनल ऐसा बिलीफ है कि अगर पेज नंबर के 7 का लिटरेचर अगर मिल जाए तो हमको आसानी होती है समझने के लिए, बीइंग अ स्टूडेंट, कि ये इस नंबर के पेज से रिलेटेड लिटरेचर सर समझा रहे हैं और हमको समझने का है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो मैंने कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड आता है कपलेट और लीड।
अब कपलेट और लीड, ये दोनों कंसेप्ट, ये वर्ड है, डिफाइन द टर्म कपलेट, डिफाइन द टर्म लीड, ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या की कैटेगरी के अंदर आता है जब हम फ्लोरा बनाने का ट्राई करते हैं। तब व्हाट इज फ्लोरा? तो फ्लोरा इज सेड टू बी द सच अ बुक व्हिच possess arrangement of key, and if you are knowing the characteristics and if you understand the morphology perfectly, you could able to identify the plants or identify the animals. Among them, one said to be the couplet. What is couplet? It is said to be the pair of contrasting characteristics. जैसे हम बोले तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और नोटोकॉर्ड एब्सेंट, तो उसके ऊपर से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे अगर मैं एक एनिमल का एग्जांपल दूंगा और एक प्लांट का एग्जांपल दूंगा, अगर प्लांट्स के एग्जांपल की बातचीत करें तो रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन, ऐसी बातचीत, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं कपलेट। एंड अमॉन्ग द कपलेट द स्टेटमेंट वॉट एवर वी हैव यूज, इट इज नोन एज अ लीड। लीड मतलब होता है क्लू। आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रिंटेड है, उस क्वेश्चंस का आंसर जज करने का, ट्राई करने का, और जैसा आंसर आपको मिले उस आंसर के ऊपर से आप स्पेसिफिक कंडीशन में जा सकते हो और आप प्लांट्स का आइडेंटिफाई कर सकते हो या एनिमल्स का आइडेंटिफाई कर सकते हो। I declare this chapter number 1 over. I have tried my best way to explain this. See, in biological discussions, biology is said to be the vast subject. बहुत डिटेल में जाता है बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट नहीं। इसके अंदर हमको सेल बायोलॉजी, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने के हमारी बातचीत हो चुका है। यहाँ पे हम टेक्सोनॉमी की बातचीत कर रहे हैं और एज एन इंट्रोडक्टरी डिस्कशन चैप्टर नंबर 1 के अंदर द लिविंग वर्ल्ड टाइटल के अंदर हमने क्या पढ़ा या मैंने क्या समझाने का ट्राई किया कि पहले ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है वो तो समझो, उसके बाद हमने बातचीत किया प्लांट्स के स्पीसीज, उसके टूल्स वगैरह डिस्कशन किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने का ट्राई किया। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट माय चैप्टर नंबर 2। बच्चा लोग शांति से देखना, पढ़ना, बड़े अगर कोई भी टीचर्स वगैरह इंटरेस्टेड हो और अगर चाहते हो मेरे वीडियोस अपडेटेड हो, इससे अच्छा मैं काम करूँ, तो हार्डली मेरे को कमेंट्स प्लीज़ लिखना। थैंक यू।